حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ حضرت یہ کتاب ہے قصیدہ قاسمی، مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبندیوں کے امام ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس میں اسکرین شاٹ میں 7 نمبر پر لکھا ہے، مدد کر غوث اعظم بے کسو ہم سے غریبوں کی، چھڑا اے غیر تیرے کون سا وسط نفس و شیطان سے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے جو غوث پاک سے مدد مانگنے کو یا کسی بھی ولی سے ڈائریکٹ مانگنے کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو اگر شرک کہتے ہیں تو اپنی کتابوں میں لکھے کیوں ہے ان لوگوں نے اس طرح سے؟ مجھے بہت کنفیوژن ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ شرک بولتے بھی ہیں اور ایک طرف اپنی کتابوں میں اس طرح سے لکھتے بھی ہیں، تو اصل ماجرا کیا ہے؟ ان لوگ اس طرح سے کرتے کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے ان کا پروپیگنڈا ہے کیا؟ جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اور تمام اہل سنت والجماعت جو سنی صحیح العقیدہ ہے ان کو حق پر مانتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی، ان کے بھی اکابروں نے اپنی کتاب میں وہی عقیدہ لکھا ہے جو ہم لکھتے ہیں۔ گھروں کی راکھ پھر دیکھیں گے، پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو پھونک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے سوال کے اندر بیان کی ہیں، یعنی جو اگزامپل آپ نے دیا ہے کہ فلاں شخص کا، ان لوگوں کا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ سارے معاملات ان کے خود کے ہیں۔ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پڑوس کا کوئی حلوائی پھیکی مٹھائی بنائے اور آپ اس کا مطالبہ مجھ سے آگے کریں گے یہ حلوائی پھیکی مٹھائی کیوں بناتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دلائل ان کو دکھا کر پوچھا جائے کہ آپ یہ معاملات جن کو شرک اور کفر اہل سنت کرتے ہیں تو کہتے ہو، یہی تمہارے بڑوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہی آپ کے اکابر کے اندر موجود ہیں، ان کے نظریات کے اندر، اور آپ انہی کو شرک کہتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی سارے معاملات ایصال ثواب سے ریلیٹڈ یا جن مسائل کے اوپر علماء دیوبند یا عوام دیوبند کا اہل سنت کے عوام پر طنز ہوتا ہے، تمام یہی مسائل اگر ان کے اکابر اور ان کے بزرگوں کی کتاب میں ہوں تو کیا یہ ان کو بھی مشرک یا کافر کہیں گے یا نہیں؟ تو یہ بہت تعجب والی بات ہے کہ واقعی میں جن معاملوں کو یہ لوگ کہتے چلے آئے ہیں، آپ لوگوں پہ تانے دیتے چلے آئے ہیں، یہ سب ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور علماء اہل سنت کافی عرصے دراز سے اس چیز کو آپ کو بار بار یہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اپنی بڑوں کی کتابوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف ایک شعر کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مدد کر غوث اعظم ہم بے کسو بے بس مجبوروں کی، تو غوث اعظم سے مدد مانگنے کو آپ دیکھیں گے ویڈیو کلپ کے اندر طارق مسعود جیسوں کی، کہ اس کے اندر غوث اعظم یا نبی پاک کو اگر مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہی کا مطلب صرف تجھ سے، تو پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا، اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو۔ میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو آپ نے کتاب دکھائی قصائد قاسمی، اس کے اندر اس طریقے کا شرکیہ شعر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ شعر کے اندر اس طریقے کی تعویلات باطلہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ذریعہ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، خدا نہیں سمجھا گیا۔ یعنی اگر ان کے خود کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ سب چیزیں مل جائیں تو وہاں پر امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ولیوں کو خدا نہیں سمجھتے، وہ تو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ سمجھ کے اس طریقے کے معاملات لکھتے ہیں۔ اور وہیں اہل سنت اگر یہ معاملات اپنی کتابوں میں دکھائے تو یہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کیونکہ یہ صفت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی۔ اور ایسی ہر مسائل کے اندر سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، چاہے وہ میلاد ہو، 11ویں ہو، یا اس طریقے سے حیات النبی کا مسئلہ ہو یا علم غیب کا مسئلہ ہو، کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کی کتابوں کو کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ چل نہیں پائے گا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ 3 دن اور 40 دن گئے ہوئے لوگوں سے ایک دفعہ پوچھیں گے تو ان کو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کے نظریات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، شرک ہیں، گناہ ہے اور بدعت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چند مثالیں میں اس کے اندر کتابوں کے آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کچھ مسائل کہ جس سے آپ کو آگاہی ملے گی کہ جن مسئلوں کے لیے یہ عوام اہل سنت بریلوی حضرات کو طنز اور طعنے اور مشرک اور قبر پوجنے والے کہتے ہیں، وہی سارے معاملات ان کی خود کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی،
اور اس کے اندر انہوں نے جو رسائل جمع کیے ہیں اس کے اندر فیصلہ ہفت مسئلے کے تعلق سے بھی ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں اور رائٹر کے بارے میں مفتی طارق مسعود سے بھی سوال ہوا ہے کہ یہ میلاد کے جو ہے وہ حامی ہیں، میلاد کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور طارق مسعود نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ ہاں وہ میلاد کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ دیکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے، یہ بات درست ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ اپنا میلاد کے تعلق سے اپنا عمل بتاتے ہیں کہ فقیر کا عمل اس کے معاملے میں یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک یعنی ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت بھی سمجھ کر خود بھی اس کو کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے میلاد شریف کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایسے کامن پرسنالٹی کے جس کو دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، ان کی کتاب کے اندر، اور دیوبند کے پیر حضرات جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کیا میلاد شریف کے اندر قیام بھی کرتے ہیں، خود بھی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے لیے برکت بھی سمجھتے ہیں اور لطف بھی ان کو آتا ہے قیام کے اندر، صلاۃ و سلام کے اندر۔ اسی طریقے سے اسی کتاب کے اندر عرس کے تعلق سے بھی ایک سوال ہے کہ عرس وغیرہ کرنے کے معاملے میں انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر صفحہ نمبر 83 کے اندر، یعنی فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یعنی ہر سال سے تو مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کو فکس کرنا۔ آج کل آپ نے ایک ایجنڈا دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں نبی پاک سے ثابت نہیں اس کو ٹائم اور وقت متعین کرنے کے بعد اس میں ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص نفل عبادت ہو جائے گی، تو ثبوت چاہیے حدیثوں سے۔ اب یہ ثبوت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں میں ان لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کو ایصال ثواب کے لیے ہر سال یعنی سال کی قید کے ساتھ ایصال ثواب کرتا ہوں، اور قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، یعنی جس کو یہ ناجائز اور عمل اور بدعت کا حکم اور فتویٰ لگاتے ہیں وہ قرآن خوانی بھی کیا کرتے تھے، اور گاہے گاہے اگر وقت میں وسعت ہوتی ہے تو مولود یعنی میلاد شریف بھی پڑھتا ہوں، پھر کھانا وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی جو ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ یعنی یہ کون لکھنے والے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس کی تائید کرنے والے کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کے بارے میں یعنی جن کے بارے میں سوال ہوا ہے طارق مسعود سے کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ صاحب وہ میلاد شریف کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اتنا جاہلانہ جواب مسعود صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے ان کو اللہ اللہ کرنے کے لیے ان کو فالو کیا ہے، مسائل کے لیے ان کو فالو نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے، باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس عمل کو یہ ناجائز اور بدعت کہہ رہے ہیں، ایک شخص اس عمل کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، یعنی وہ ناجائز اور بدعت عمل کرتا ہے، اور انہوں نے ایسے بدعت کرنے والے بدعتی کو اللہ اللہ کرنے کے لیے فالو کیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ وہابی بولتا ہے مگر سوچتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی شخص کسی کو پیر و مرشد بناتا ہے تو کسی ایسے کو بناتا ہے جس کے عمل میں فساد ہو یا اس کے عقیدے میں فساد ہو، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ان دیوبندی حضرات کے آپ قربان جائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کرنا، عرس کرنا یہ ناجائز عمل اور بدعت عمل ہے، اور جو شخص یہ کرتا ہے ہم اس سے اللہ اللہ سیکھتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ بدعت کے اندر مبتلا ہے، یہ اس سے اللہ اللہ سیکھتے ہیں۔ اب ان کے پاس کیونکہ حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں جواب تو نہیں بن سکا، جب عوام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد دیوبند کے جو یہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ عمل جائز ہے، ہم لوگ غلطی پر ہیں جو عوام کو فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ 1400 سال سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مسائل میں فالو نہیں کرتے، وہ کرتے تھے کرتے رہیں۔ اگر وہ کرتے تھے کرتے رہیں، آپ مسائل میں فالو نہیں کرتے، تو آپ اس عمل کو ناجائز، بدعت اور گناہ اور خلاف سنت وغیرہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو اللہ اللہ کرنے کے لیے اسی کو فالو کرے گا کہ جس کا عقیدہ بالکل درست ہو، اور جس کے عقیدے میں بدعت شامل ہو اس کو اللہ اللہ کرنے کے لیے دیوبندی حضرات فالو کر لیتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول یہ بھی معاملہ آپ دیکھ لیں
کہ बिदत वाले शख्स को इन्होंने अल्लाह अल्लाह के लिए फॉलो किया है। अब एक और शख्सियत आप देखें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और ये ऐसी शख्सियत हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो इल्म हदीस हिंदुस्तान में लाने वाली शख्सियत जिनको कहा जाता है, और देवबंदियों के तमाम मुहद्दिस और बरेलवियों के तमाम आलिमों की इल्म सनद जो है वो सनद के एतबार से इन तक ज़रूर पहुँचेगी। यानी हिंदुस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि हदीसों का इल्म लाने वाली पहली शख्सियत है। आप इस तरीके से आप इनको समझ लें कि हदीसों के आलिम मुहद्दिस हिंदुस्तान के अंदर ये पहले हैं जो देवबंदी बरेलवी दोनों के लिए कॉमन पर्सनैलिटी हैं। अब उन्हीं की आप किताब देखें और उसके अंदर इन्होंने मिलाद के ताल्लुक़ से क्या लिखा है उसको भी देखें। कहते हैं कि हमेशा से मुसलमानों का ये दस्तूर रहा है कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद की महफिल मुनक़िद करते हैं, दावतें करते हैं, इसकी रातों में सदक़ात और खैरात और खुशी के इजहार का एहतमाम करते हैं। उनकी खुशी होती है कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें और इस मौके पर वे विलादत बासादत के वाक़यात को भी बयान करते हैं। यानी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मामूल है कि मिलाद की महफिल को वो भी जायज़ समझते हैं, मगर आज के हज़रात जो इनको अपना बताते हैं वो मिलाद को नाजायज़ कहते हैं और ये उनकी किताबों से पढ़ के बता भी नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सऊदी अरब का मिराज रब्बानी गैर मुक़ल्लिद जो इनको रोस्ट किया है उसने वो इसी बिना पे किया है क्योंकि वो भी यही कहता है कि ये सारी बातें देवबंद की किताबों में हैं लेकिन ये बताते नहीं हैं क्योंकि ये मुनाफिक हैं। और ये जब देवबंद अरब जाते हैं तो हम वहाबियों से कहते हैं कि तुम भी वही हो हम भी वही हैं, और जब ये वापस इंडिया जाते हैं तो ये वहाबियों को भी बुरा कहते हैं और सारी बातों को छुपाते हैं। इसीलिए वो बंदा बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप लोग इनकी किताबें पढ़ोगे तो जानोगे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम तस्वुर करते हैं तो देवबंदी भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम, अपना पेशवा तस्वुर करते हैं। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक अकीदे सिलसिले तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हम भी वही तुम भी वही, सब कुछ हम भी मुआहिद तुम भी मुआहिद, लेकिन ये मुनाफिक है। दरअसल गलत कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अब ये आपस में मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बरेलवी इनको अपने आगे अपने जो है करीब भी फटकने नहीं देते कि जब भाई तुम वो हो तो फिर छुप के क्यों रहते हो, खुल के आओ सामने, क्यों मुनाफिकत की चादरें ओढ़ के बैठे हो? इसलिए हमें यह मेहनत करना पड़ रही है, तुम खुल के आ जाओ ना सामने, क्यों छुप छुप करके? साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने इसी किताब के अंदर लिखा है कि मिलाद शरीफ मनाने की खुसूसी तजुर्बात उन्होंने शेयर किए हैं और वो बताते हैं कि तजुर्बात में मिलाद शरीफ मुनक़िद करने वाले
साल भर अमन व आफियत में रहते हैं और ये मुबारक अमल हर नेक मकसद में जल्द कामयाबी की बशारत का सबब बनता है। यानी ये अमल मिलाद शरीफ कराना, नबी पाक के मौजज़ात को, उनकी विलादत को बयान करना, उनके कमालात को बयान करना और महफिल मिलाद सजाना, ये हर जायज़ अमल के जल्दी पूरा होने के मकसद का ये सबब भी बनता है। अब ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला है। इसी तरह अखबारुल अखयार बहुत मशहूर किताब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इसके ताल्लुक़ से भी लिखा इन्होंने अपने बारे में। फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम अमाल में फसाद नियत मौजूद रहती है, अलबत्ता मुझ हकीर फ़कीर का एक अमल सिर्फ़ तेरी ज़ात पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है, और वो ये है कि महफिल मीलाद के मौके पर मैं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ और निहायत आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत और खुलूस के साथ तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा हूँ। यानी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको ये अपना अकाबिर और बुज़ुर्ग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो तेरी बारगाह में कबूल हो, लेकिन तेरी इनायत से मेरा एक अमल बहुत शानदार है, और वो ये है कि मैं महफिल मीलाद में सलातो सलाम जो खड़े होकर पढ़ता हूँ और तेरे हबीब पाक पर दुरूद भेजता हूँ, सलाम भेजता हूँ। मैं इस अमल को अपने लिए बहुत शानदार समझता हूँ तेरे करम से। अब मिलाद की महफिल मनाना और उसके अंदर दुरूद पढ़ना, दुरूद व सलाम पढ़ना, और वो भी खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना, ये तमाम चीज़ें उन अकाबिरों की किताब में है जिनको उलमाए देवबंद अपने अकाबिर बताते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक और, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब देखें, फयूज़ुल हरमैन। तो इसके अंदर जो हरमैन शरीफ के उन्होंने फैज़ व बरक़ात लिखी हैं, उसी के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि इससे पहले मैं मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन एक ऐसी मिलाद की महफिल में शरीक हुआ जिसमें लोग आपकी बारगाह अक़दस में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज़ करते रहे थे। यानी ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं कि अरब शरीफ की महफिल के अंदर मक्का मुकर्रमा में मैं शामिल हुआ। और अभी आपने सुना होगा कि तारिक मसूद ने यह कहा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मनाया जाने वाला एक ऐसा फेस्टिवल है कि ये और कहीं नहीं मनाया जाता, हरम में नहीं होता, काबे में नहीं होता। अब वहाबियों की हुकूमत है तो नहीं होता। जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और 150 साल पहले के जितने बुजुर्ग थे, उस वक्त ये तब सब काम जो है वो हुआ करते थे, जिनकी हमने पुरानी वीडियो के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर भी बताया है कि किस तरीके से ये सब मिलाद की महफिलें हुआ करती थी। तो ये मक्का मुकर्रमा के अंदर भी जहाँ पे लोग मिलाद की महफिल करते थे और वहाँ पे लोग दुरूद व सलाम हदियतन पेश करते थे, और नबी पाक की विलादत के मौके पर जो ज़ाहिर होने वाले मशहूर वाक़यात हैं, ये उनकी जो है उनको भी बयान किया करते थे। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मजालिस हकीमुल उम्मत एक किताब है जो मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब की है। अब इसके अंदर आप देखें, सबसे ताज्जुब वाली चीज़ है कि ये जो हजरात आज जिस चीज़ को ये कहते हैं कि जिन चीज़ों के अंदर खुराफात शामिल हो गई है, लिहाजा इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। आपके अशरफ अली थानवी साहब इसके बारे में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इसके मुतालिक पहले मेरा ख़याल, यानी मीलाद शरीफ के मुतालिक सफ़ा नंबर 160, मीलाद शरीफ के मुतालिक पहले मेरा ख़याल ये था कि इस महफिल का असल काम ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके नज़दीक खैर व मुस्तहब है, ठीक है, खैर व सादत व मुस्तहब ही है। अलबत्ता इसमें चंद मुनकरात और गलत रसूमात शामिल कर दी गई हैं, इनका इजाले की कोशिश करनी चाहिए। यानी ये जो मीलाद शरीफ की महफिल है, अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं ये सबके नज़दीक खैर व बरकत वाली है और मुस्तहब महफिल मिलाद शरीफ करना। और आज अशरफ अली थानवी साहब का नाम लेने वाले मसूद साहब कहते हैं कि ये तो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर किया जाने वाला त्यौहार है, कि ये कैसा त्यौहार है कि जो अरब में नहीं होता। तो आपके हकीमुल उम्मत और आपके पुराने अकाबिर और बुज़ुर्ग ये सब बता रहे हैं कि मक्का शरीफ के अंदर और मिलाद शरीफ आपकी पैदाइश से पहले से होता रहा है। यानी जब मसूद साहब ने आंखें भी नहीं खोली थी, उस वक्त से ये अमल मुसलमानों के अंदर बाइस बरकत और खैर व बरकत और मुस्तहब वाला रहा है। अलबत्ता कहते हैं कि इसके अंदर कुछ गलत रस्में शामिल कर दी गई हैं, उन रस्मों का
यानी उनको हटाने की, उनके इजाले की कोशिश करनी चाहिए। यानी मिलाद की महफिल ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस मिलाद की महफिल में अगर कोई गलत रस्म शामिल हो गई हो तो उस गलत रस्म को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आज दलील ये दी जाती है कि ये इसलिए नहीं करनी चाहिए, बिदत की तायीद होती है, ये इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिदत की तायीद होती है, नाजायज़ अमल को जो है वो इसमें इजाफा होता है। और हकीम उल उम्मत साहब कह रहे हैं कि जिस जायज़ अमल में नाजायज़ अमल मिल जाए तो नाजायज़ को ख़त्म करो, जायज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप शादी बारात भी ले सकते हैं। मौजूदा दौर के अंदर शादियों के अंदर भी खुराफात होती है। आपको एक देवबंदी मुफ्ती ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे क्योंकि इससे नाजायज़ अमल की जो है वो तायीद होती है लिहाजा शादियाँ ना करें। हर कोई ये कहेगा सादा निकाह करो, सुन्नत की तरह शादी करो, जायज़ तरीके से शादी करो, लेकिन यही चीज़ें मिलाद के बारे में नहीं बोली जाएंगी कि जायज़ तरीके से की जा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि दुनिया की तमाम शादियों में नाजायज़ रस्म शामिल है तो आप अपनी जो शादी करते हो तो उसमें जायज़ रस्म करके लोगों को दिखाओ कि सादा निकाह, जायज़ निकाह, सुन्नत के हिसाब से निकाह कैसा होता है। ठीक वैसे ही मिलाद के अंदर नाजायज़ अमल को निकाल के सही तरीके से मिलाद करके लोगों को दिखाना चाहिए कि जैसे आपके बड़े बुजुर्गों का कौल है कि जायज़ अमल को जारी रखा जाए और नाजायज़ को ख़त्म किया जाए। आगे फरमाते हैं अशरफ अली थानवी साहब कि असल जो महफिल मिलाद है वो मुस्तहब को तर्क नहीं करना चाहिए, और ये दरअसल हमारे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहू का मसलक था। यानी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ये कह रहे हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब का नज़रिया और मसलक क्या था कि जायज़ अमल मुस्तहब महफिल को तर्क नहीं करना चाहिए, ये कह कर के उसमें नाजायज़ चीज़ें शामिल हैं, लिहाजा उसके अंदर खुराफात शामिल हैं, बल्कि करना ये चाहिए कि उन खुराफातों को आप दूर हटाकर जो जायज़ अम्र है, मुस्तहब काम है, उसको जारी रखना चाहिए। तो ये चंद मिसालें उर्स के ताल्लुक़ से और मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शोरगुल लोगों के अंदर मचाया जाता है देवबंदी हजरात और उलमा की तरफ से कि ये नाजायज़ और गुनाह के अमल है। तो इसीलिए अहले सुन्नत के आलिम आपसे बार बार ये कहते हैं कि आप एक दफ़ा इनके बड़े बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ो और उनको जानो कि ये तमाम बातें जिसके हिसाब से ये आप पर कुफ्र शिर्क के फतवे लगाते हैं, ये सब उसके अंदर इनके बुज़ुर्ग मुब्तला हैं, ये तमाम कामों को जायज़ समझते हैं इनके अकाबिर। अब क्योंकि ये अपने बुज़ुर्गों से गद्दारी करते हुए अपना नया रास्ता लेके चले, अगर ये इसको जायज़ कर देंगे तो इसी वजह से ये फिर फ़र्क ख़त्म हो जाएगा देवबंदी और बरेलवी में, और बरेलवी आवाम जो देवबंदी बनती जा रही है वो इनसे सवाल करेगी कि अगर मिलाद ही करना है तो देवबंदी बनने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले से हमारे घर में होता चला आया है। और इसीलिए इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोग जो कॉपी पेस्ट का काम करते हैं कि जो देवबंदी की किताब की इबारतें पेश करते हैं बरेलवियों के ख़िलाफ़ और बरेलवियों की देवबंद की किताब के ख़िलाफ़, ये सारी बातें उलमा ने ऑलरेडी जो है वो एक्सपोज कर रखी हैं और तमाम चीज़ें इंटरनेट के ऊपर उलमा ने बता रखी हैं किताबों के हवाले से। और मिर्ज़ा इसमें कुछ नया काम नहीं करता, वो सिर्फ़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो उलमा ने बता रखा है उसको लेके एक दूसरे के ख़िलाफ़ पेश कर देता है, और वो भी अल्लामा बनने की बीच में कोशिश करता है, जैसे बिल्ली की लड़ाई में बंदर वाला मामला। यानी ये क्या समझता है कि मैं इतनी तहकीक करके चीज़ें लाता हूँ, जबकि तहकीक नहीं है, ये सब उलमा अहले सुन्नत ने बता रखा है कि ये तमाम चीज़ें उनके अंदर मौजूद है। इसलिए मिर्ज़ा भी ये कहता है कि देवबंदियों के तमाम अकायद जो अल मुहन्नद के अंदर ये डिबेट का मसला चला था तारिक मसूद के साथ, मिर्ज़ा भी यही दावा कर रहा था कि उस किताब के अंदर सारे अकायद और नज़रियात जो अहले सुन्नत बरेलवी के हैं उसकी तायीद की गई है, उनको सच्चा बताया गया है, उसको अपना नज़रिया और अकायद बताए गए हैं, इसलिए तारिक मसूद वहाँ पहुँचा था उसके दिफा में। तो सारा मसला यही है कि जिस चीज़ के लिए उलमा कहते हैं वो सब चीज़ें मौजूद हैं, चाहे आप मिलाद ले लें, इसाले सवाब ले लें, उर्स ले लें, दरूद व सलाम ले लें, खड़े होकर सलाम पढ़ना ले लें, हयातुन नबी ले लें, अम्बिया या औलिया की बाद विसाल मदद भी ले लें तो भी शामिल है इसके अंदर। उन चीज़ों की दलाइल भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। बल्कि ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो नज़रिया और अकीदा ये है, इन्होंने 4 बुज़ुर्गों के नाम भी बयान किए, जिसके अंदर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन वलियों को ये ताकत और कुव्वत दी है कि वो विसाल के बाद भी तसर्रफ की इतनी ताकत रखते हैं कि वो मदद कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, उसके अंदर एक नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। और इसी तरीके से ये भी कि बाद विसाल मदद करने के ताल्लुक़ से भी इनकी किताबें, इनकी दलाल भरी पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक मिलाद और चंद मिसालें मैंने दी, अगर हर एक मसले के ऊपर इनकी किताबों से दलाइल और मसाइल बयान किए जाएँ तो उलमा अवाम देवबंद के सामने, अवाम के सामने इनकी सारी हकीकत आ जाएगी, और क्यों ये इन किताबों से जान छुड़ा के भागते हैं और क्यों बयान नहीं करते। उसकी वजह यही है क्योंकि ये इन सबको नाजायज़ और अमल बिदत
चुके हैं ताकि बरेलवी हजरात के अंदर ये फ़र्क कर सके कि ये लोग ये सब करते हैं लिहाजा आप मत करो, नाजायज़ है, जबकि जो लोग करते हैं वो सब इनकी किताबों के अंदर, पुराने अकाबिर और बुजुर्गों की किताबों के अंदर मौजूद है। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadriHosting.com से। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।